Hello everyone. 11. So in this question, what is the difference? That in this question they had not given you that how much we are collecting in application, how much we are collecting in allotment. That means here whole money we are giving at once only. So when whole money we are giving at once, so that is called as lump sum. उसको क्या कहा जाता है? Lump sum. So in this question, they are given us question number 11, page number 7.155. ABC Limited had issued 20,000 shares at the rate of 10 each. Total आप 20,000 shares issue कर रहे हो और एक share 10 each. They ask that we are issuing at par and we are issuing at premium. So premium concept now till now I had not explained you, but par you are knowing. Par means one share is of rupees 10 rupees and we are issuing share at 10 rupees only. So that is called as issued at par. Issued at par का मतलब क्या होता है? जितने का एक शेयर है अगर हम उतने में ही इशू करते हैं, so that is called as issued at par. That day I had explained you एक इंस्टॉलमेंट की कितनी जर्नल एंट्रीज होती हैं? 2. तो यहाँ अब आपको पूरे पैसे एक ही बार में देने हैं तो आपकी कितनी जर्नल एंट्री होगी? 2 only. Each installment is having 2 journal entry. So here we have to pay in one installment only. एक ही installment में पैसे देने हैं. So if we are paying in one installment, so it is called as lump sum. तो lump sum means पूरा पैसा एक ही बार में दे दिया. तो your journal entry will be 2 journal entry. आप देखो आपने अभी मुझे journal entry सुनाई थी. आपकी पहली journal entry आप लिखते हो बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन, ये एंट्री लिखते हैं आप. और सेकेंड एंट्री हम क्या लिखते हैं? शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल. वी आर डूइंग दिस एंट्री ओनली. बट अगर हम लमसम में पूरे पैसे एक ही बार में लेते हैं तो हम यहाँ एप्लीकेशन के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे? अलॉटमेंट भी यूज करेंगे. तो एप्लीकेशन के साथ क्या वर्ड यूज करेंगे? अलॉटमेंट. सो इफ होल मनी वी आर रिसीविंग इन सिंगल इंस्टॉलमेंट, so we have to pass 2 journal entry and that 2 journal entries will be bank to share application and allotment, share application and allotment to share capital, and 20,000 shares were paying 10 rupees, so we have to multiply that. You will get 2 lakh, 2 lakh. Here also 2 lakh, 2 lakh. Now tell me whether this situation is clear to everyone. Yes, ma'am. And difference also understood? Yes, ma'am. If we are collecting in single installment, that is lump sum, so we have to write with the name of application allotment also. So bank to share application and allotment, second share application and allotment to share capital. Clear this thing beta? Yes, ma'am. Now next concept, at premium. This you have written. Same question they have given us two situation, at par and at premium. So we have done at par. Now I am explaining you the situation at premium. So if this much you have copied, then tell me so that I will start next situation. Yes. Okay. So सबसे पहले you have to understand the concept of premium. Premium का मतलब क्या होता है? प्रीमियम का मतलब होता है जब हमारा शेयर फेस वैल्यू से ज़्यादा में बिके. तो आपकी फेस वैल्यू क्या है? 10 रुपीज़. तो अगर हमारा शेयर 10 रुपीज़ से ज़्यादा में बिकेगा तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रीमियम. तो यहाँ पे आपको कहा है आपका शेयर
10% प्रीमियम में बिक रहा है, तो एक शेयर 10 रुपीज का है, उसका 10% निकालिए तो उसका 10% कितना आ रहा है, 1 रुपीज एक्स्ट्रा में बिक रहा है। तो 1 रुपीज एक्स्ट्रा मीन्स आपका 10 रुपीज का शेयर है, 1 रुपी प्रीमियम हो गया, तो आपका शेयर कितने में सोल्ड आउट हो रहा है, 11 रुपीज। आई ये चीज समझ में आई बेटा कि नहीं आई? प्रीमियम कैसे निकालेंगे? आपका एक शेयर 10 रुपीज का है, आपको कहा है 10% प्रीमियम में बिक रहा है, मतलब 10% एक्स्ट्रा में बिक रहा है, तो फेस वैल्यू 10 रुपीज है, 10 रुपीज का 10% निकाला, दैट मीन्स 1 रुपी एक्स्ट्रा में सोल्ड आउट हो रहा है, सो दैट 1 रुपीज विल बी कॉल्ड एज प्रीमियम एंड टोटल अब आपका शेयर कितने में सोल्ड आउट हो रहा है, 11 रुपीज में। क्लियर? इतना समझ में आया? Yes, ma'am. नाउ सेकंड डिफरेंस क्या होगा, अभी हमें पार था तो हमें एक 10 रुपए मिल रहे थे, नाउ आवर शेयर वैल्यू इज 11, तो हमें कितने रुपीस मिलने वाले हैं, 11 रुपीस मिलने वाले हैं। तो एंट्री तो हमारी यही रहने वाली है, बस इस एंट्री में एक माइनर चेंजेस होगी, क्योंकि आपको प्रीमियम मिल रहा है तो हमें प्रीमियम कहीं ना कहीं तो शो करना पड़ेगा। प्रीमियम बताओ एक्सपेंस है कि इनकम है? इनकम, बिकॉज हमारा 10 वाला शेयर अब 11 में बिक रहा है, दैट मीन्स 1 रुपीज एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, तो दैट इज योर इनकम। तो ये जो हमारी इनकम है, तो ऑल इनकम्स आर क्रेडिटेड, तो हम सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के नाम से इसको क्रेडिट कर देंगे, कैपिटल में शो करेंगे। 20,000 के शेयर्स हैं, 20,000 शेयर्स हैं, 10 रुपए कैपिटल वैल्यू है, 20,000 शेयर्स हैं, 1 रुपी प्रीमियम वैल्यू है, दोनों मिलाकर आपको 11 रुपीज मिल रहे हैं। आया समझ में? कैसे आएगा? दैट मीन्स आपको कितने रुपीज मिल रहे हैं, 22 लाख, 2,20,000, 2,20,000। The premium concept is clear. How to show the premium value in your journal entry? Ma'am, repeat कर दीजिए। देखो बेटा, प्रीमियम हमारी इनकम है और उस इनकम को हम हमेशा क्या करेंगे, क्रेडिट। तो हमने सेकेंड एंट्री में क्रेडिट करेंगे, हमेशा बैंक वाली एंट्री में कभी भी प्रीमियम शो नहीं करते, बैंक की जो दूसरी एंट्री होती है उसमें शो करते हैं। तो पहली एंट्री हमने बिल्कुल चेंज नहीं करी, वही की वही एंट्री है, 20,000 शेयर्स इशू करें, अब आपको 11 रुपीज़ मिलने वाले हैं, तो वहाँ 20,000 इंटू 11 करके 2,20,000 मिल गया। सेकेंड एंट्री हम शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल करते ही हैं। अब प्रीमियम है तो यहाँ पे टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व शो कर देंगे, तो आप अलग अलग वैल्यू बताओगे, कैपिटल में फेस वैल्यू जाती है, प्रीमियम में प्रीमियम वैल्यू जाती है, तो वो हमने शो कर दिया। Now it's clear? Yes, ma'am. Okay, now question number 12. Question number 12 I am explaining, then we are able to do the other questions easily. तो ये question number 12 अच्छे से समझ लीजिएगा। अब हम प्रीमियम का सम कर रहे हैं बट इंस्टॉलमेंट में। अभी हमने प्रीमियम का सम जो करा है किसमें किया, इंस्टॉलमेंट में कि लमसम में? लमसम। अभी हमने एक साथ ही पैसे लिए और उसमें प्रीमियम शो करा है। अब नेक्स्ट वेराइटी है, हम इंस्टॉलमेंट में पैसे लेंगे और उसमें प्रीमियम कैसे शो करेंगे। तो क्वीन कॉस्मेटिक्स इशूड 80,000 शेयर्स, आप 80,000 शेयर्स इशू कर रहे हो एट द रेट ऑफ 100 ईच, 100 का एक शेयर है, जिसमें 20 रुपीज प्रीमियम, तो एक शेयर की वैल्यू कितनी बन गई, 120। तो ये 120 अब आप इंस्टॉलमेंट्स में ले रहे हो, इसमें से 50 रुपीज आप कहाँ ले रहे हो, एप्लीकेशन में।
इसमें से आप एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ दी है, 50 ऑन एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट, जिसमें कहा है इंक्लूडिंग प्रीमियम, प्रीमियम मिक्स करके, एंड 50 ऑन फर्स्ट कॉल, 20 ऑन फाइनल कॉल। All shares fully subscribed and money duly received। पहले क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं आया? आपकी कंपनी ने 80,000 शेयर्स इशू करे हैं, 100 रुपीज़ का एक शेयर है, 20 रुपीज़ इज प्रीमियम, तो आपका 100 वाला शेयर 120 में सोल्ड आउट हो रहा है। अब ये पैसे हम इंस्टॉलमेंट्स में मांग रहे हैं, वो भी 3 इंस्टॉलमेंट, जिसमें 50 रुपीज़ की एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट एक साथ है, जिसमें प्रीमियम मिक्स है। तो अगर हम इस 50 रुपीज़ को ब्रेक करें तो 20 रुपीज़ प्रीमियम हटा दें तो ये 30 रुपीज़ किस में चला जाएगा? कैपिटल में। प्रीमियम अगर हटा दिया जाएगा तो जो बचेगा वो कहाँ चला जाएगा? कैपिटल में। 50 रुपीज़ आपका फर्स्ट कॉल है, 20 रुपीज़ आपकी फाइनल कॉल है। पहले क्वेश्चन सबको समझ में आया कि नहीं आया? यस मैम। अब क्वेश्चन करेंगे कैसे बेटा, ये समझो। पहली एंट्री आप क्या लिखते हो? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। अब इनने क्वेश्चन में कहा है एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, तो हमें यहाँ एप्लीकेशन के साथ अलॉटमेंट भी लिखना पड़ेगा। ठीक है, सेकेंड एंट्री हमारी क्या होगी बताइए? शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल, प्रीमियम इसी में बोला है तो टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व। अब कोई मुझे बता सकता है किसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चंचल आप बताओ बेटा, किससे मल्टीप्लाई करेंगे? चंचल टेल मी। मीन्स आई डोंट नो। यू डोंट नो। अभी तो मैंने समझाया बेटा, आपके 80,000 शेयर्स हैं और टोटल एप्लीकेशन में कितने रुपीस मिल रहे हैं? 50 रुपीस। दैट मीन्स आप 80,000 को 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा? 4 लाख। 4 लाख आया समझ में? एप्लीकेशन आपको टोटल 50 रुपीस की मिल रही है और कितने शेयर्स हैं? 80,000 शेयर्स हैं, तो 80,000 इंटू 50 करेंगे तो आपको नंबर ऑफ मनी आ जाएगी कि आपको 4 लाख रुपीस मिल रहे हैं। क्लियर नाउ चंचल? यस मैम। अब यहाँ 4 लाख है, दैट मीन्स यहाँ पे भी 4 लाख रहेंगे बिकॉज सेम नेम। अब बताओ कैपिटल और प्रीमियम में कितना आएगा? हु विल टेल मी? देखो मैंने वहाँ टेबल ब्रेक करा है, 20 रुपीज़ प्रीमियम है, 30 रुपीज़ कैपिटल है, तो बताओ कैपिटल में कितना जाएगा और प्रीमियम में कितना जाएगा? कैपिटल विल बी मल्टीप्लाइड बाय 30। यस, 80 इंटू 30, दैट मीन्स 2,40,000 एंड प्रीमियम में कितना आ जाएगा? 80 into 20, that is 1,60,000. Clear? यस इतना सबको समझ में आया? यस मैम। नाउ थर्ड एंट्री बताओ, फर्स्ट कॉल की ड्यू की एंट्री क्या होगी? शेयर फर्स्ट कॉल Yes. अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। Yes, good. Share first call account debit to share capital account.
अमाउंट क्या आएगा? 50 into 80,000. Yes, good. That means 4 lakh, 4 lakh. Then next कितना जाएगा? फोर्थ एंट्री क्या हो जाएगी हमारी? Bank account debit to first call account. Yes, bank account debit to share first call. And same amount 4 lakh, 4 lakh. फिफ्थ एंट्री क्या हो जाएगी? Share final call account debit to share capital account. Yes, good. So share final call account debit to share capital and amount will be 80,000 into 20. 1 lakh. that means 160 1 lakh. and next entry Bank account debit to call account. Account debit to final. so this much is clear to now everyone. Yes, ma'am. Today maximum students were there, so to all the newcomers welcome today, but whether this is clear to everyone now? Yes, ma'am. Okay beta, good. Yes, ma'am. Keep studying.